This morning I stand here to share with you the message of Christmas. आज सुबह मैं आपके सामने खड़ा हूँ क्रिसमस के संदेश को आपके पास लेकर आने के लिए. And so I want your patient and careful attention. मैं चाहता हूँ कि आप धीरज के साथ और ध्यान से इन बातों को सुने जो मैं आपके साथ आज बांटूंगा. So, through songs and readings from the Bible and the skit, we have been trying to tell the Christmas story. तो हम गीतों के द्वारा और बाइबल के वचनों के द्वारा और इस स्किट के द्वारा हम क्रिसमस की कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे थे. But why is this story even worth telling? लेकिन ये कहानी बताने योग्य क्यों है? And how does it even matter to us? और ये हमारे लिए क्यों किसी भी मूल्य का है? In all of our celebrations we often forget the true Christmas story. इन सारे जो हमारे पर्व मनाने में हम इसके पीछे के सच्ची कहानी को अक्सर भूल जाते हैं. And it's a very important story that you all must hear, understand and believe. लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है जिसको आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए. It is not about Santa Claus. ये Santa Claus के बारे में नहीं है. In fact, Santa Claus is a big distraction to the real Christmas story. बल्कि Santa Claus तो क्रिसमस की सच्ची कहानी से हमें दूर ले जाता है. He is just an imaginary character which popped up in history. वो तो सिर्फ एक काल्पनिक पात्र है जो अचानक से इतिहास में उभरा. Neither he nor his message has any connection with Christmas. ना उसका संदेश का क्रिसमस के साथ कोई रिश्ता है. Sorry to disappoint you. आपको मैंने निराश किया आज सुबह कि ये बोलकर कि Santa Claus का कोई रिश्ता नहीं है क्रिसमस के साथ. To say that Santa Claus has nothing to do with Christmas. But today I will give you the real story of Christmas from one of the books of the Bible. लेकिन आज मैं आपके साथ क्रिसमस की सच्ची कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा बाइबल के एक किताब से. This book is the Gospel according to Luke. It was a gospel written by a man called Luke. ये लूका रचित सुसमाचार से है. लूका नामक एक व्यक्ति ने ये सुसमाचार को लिखा. And so for my first point today is that for you a savior is born, Christ the Lord. आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो मसीह प्रभु है. आज का पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने रखता हूँ वो यही है. Now I am preaching today from Luke chapter 2 verse 8 to 14. मैं लूका के दूसरे अध्याय और उसके 8वें आयत से 14वें आयत तक मैं आज प्रचार करूंगा. So last week I had preached from Luke chapter 2 and verse 1 to 7. पिछले हफ्ते मैंने लूका के दूसरे अध्याय और उसके पहले 7 आयतों से प्रचार किया था. And so today I am going to be moving forward. तो आज मैं उससे आगे बढ़ूंगा. In the last passage we learned about the birth of a child in Bethlehem. हमने पिछले खंड में हमने सीखा कि बेथलेहेम में एक बालक का जन्म होता है. It was a small town in Israel. Bethlehem, इज़राइल में एक छोटा सा नगर है. And talking about that place, this is what the author says in verse 8. और इस जगह के बारे में बात करते हुए लेखक हमसे 8वें आयत में देखो क्या कहता है. And he says, in the same region there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. और उस देश में कितने गडरिये अथवा चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे. Shepherds were very ordinary people. चरवाहे अथवा गडरिये
काफी साधारण प्रकार के लोग थे. They did not have a high standing in the Israeli society. इज़राइल के समाज में इनका कोई ऊंचा पद नहीं था. In fact, they were despised people. बल्कि ये तो तिरस्कृत लोग थे. But to such despised people, the story of Christmas is declared. लेकिन ऐसे तिरस्कृत लोगों से क्रिसमस की कहानी का प्रकाशन किया जाता है. But on that first Christmas, they were visited by some very special guests. उस पहले क्रिसमस पर उनकी मुलाकात बहुत ही विशेष अतिथियों से होती है. Verse 9 says, 9 आयत कहता है, And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with fear. और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए. The shepherds are terribly frightened. गडरिये बहुत डर गए स्वर्गदूत को देखकर. Why would an angel come to them? एक स्वर्गदूत उनके पास क्यों आएगा? Does he come in peace? क्या वो एक शांति का संदेश लेकर आया है? Or does he come with punishment from God? या परमेश्वर से दंड लेकर आया है? But then the angel reassures them. He tells them in verse 10, Do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy, which will be for all the people. लेकिन स्वर्गदूत उन्हें आश्वासन देता है, और 10वें आयत में ऐसा लिखा है कि वो उनसे कहता है, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए है. The angel is bringing good news for all the people of this world. स्वर्गदूत सुसमाचार अथवा अच्छी खबर लेकर आया है जो दुनिया के सारे लोगों के लिए है. Not just for the shepherds, but the people of the whole world. इन गडरियों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए. According to the angel, this good news should give us great joy. स्वर्गदूत के अनुसार ये ऐसा सुसमाचार है जो हमें बड़ा आनंद देगा. So what is this good news of great joy? तो ये बड़ा आनंद का सुसमाचार क्या है? The heart of the angel's good news is found in verse 11. स्वर्गदूत का सुसमाचार का जो मुख्य बात है उसको हम 11वें आयत में लिखा हुआ पाएंगे. The angel says, स्वर्गदूत कहता है, For today in the city of David there has been born to you a savior who is Christ the Lord. वो उनसे कहता है कि आज दाऊद की नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है. The city of David is Bethlehem. दाऊद का नगर का मतलब है बेथलेहेम. Israel's greatest king, King David, was from this city. इज़राइल का सबसे महान राजा दाऊद राजा वो इस नगर से था. But the angel says that the child which was born in Bethlehem was no less significant. लेकिन स्वर्गदूत उनसे कहता है, ये बेथलेहेम में जो जन्मा बालक है वो किसी से कम महत्वपूर्ण नहीं है. And he ascribes 3 titles to him, और वो उसे 3 पदवियां देता है. And wrapped inside these titles is the good news of great joy. और इन 3 पदवियों में लिपटा हुआ है बड़े आनंद का सुसमाचार. First, he says that the child which was born is our savior. पहले वो कहता है कि ये जो बालक जन्मा है वो हमारा उद्धार करता है. In the gospel written by John, it is written that he is indeed the savior of the world. यूहन्ना रचित सुसमाचार में ऐसा लिखा है, वह सचमुच में जगत का उद्धार करता है. The Bible tells us that the world needs a savior. बाइबल हमसे कहता है कि इस जगत को एक उद्धारकर्ता की जरूरत है. It gives us the hint
that we are in trouble. ये उस बात का संकेत करता है कि हम मुसीबत में हैं. There is some bad news for us. हमारे लिए एक बुरी खबर भी है. And the good news is being given in that context. और इस सुसमाचार को उस बुरी खबर के संदर्भ में दिया जा रहा है. So what is that bad news? तो वो बुरी खबर क्या है हमारे लिए? According to the Bible, everyone who commits sin is a slave of sin. बाइबल के अनुसार जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है. Our conscience reflects that there is a moral law given to us by God. हमारा विवेक या अंतरात्मा इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर ने हमें एक नैतिक व्यवस्था को दिया है. Because it constantly blames us for doing something wrong. Our conscience is constantly blaming us for all the wrong things we have done. हमारा विवेक लगातार हम पर दोष लगाता है. वो हमें कहता है कि हमने पाप किया है. I don't think there is anyone here who does not feel this burden of guilt. मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी है जो इस पाप के बोझ का अनुभव नहीं किया है. Because we have all sinned by breaking God's law. क्योंकि हम सब ने परमेश्वर के व्यवस्था को तोड़कर पाप किया है. Have you dishonored your father or mother? क्या आपने अपने माता पिता का अनादर किया है? Have you ever stolen something? It might be as small as a pencil or a rubber. आपने कभी चोरी किया है? वो छोटी से छोटी चीज हो सकती है. हो सकता है पेंसिल या रबर की चोरी की है. Have you ever lied? क्या आपने कभी झूठ बोला है? If we have done this, we have sinned. अगर हमने ये किया है तो हमने पाप किया है. But the Bible says we are guilty of a far worse spiritual condition. लेकिन बाइबल हमसे कहता है हमारी आत्मिक परिस्थिति तो इससे कहीं अधिक खराब हो चुकी है. Sin only shows that we have become slaves to sin. पाप सिर्फ इस बात को दर्शाता है कि हम तो पाप के दासत्व में हैं. Sin is our master. पाप हमारा स्वामी है. He controls us. वो हमें नियंत्रित करता है. We obey him every day of our lives. हम हर दिन प्रतिदिन उसके बातों को सुनते हैं. You don't believe me? क्या आप मेरा इस बात पर विश्वास नहीं करते हो? Just do an audit of your own thoughts over the last 1 week. आपको केवल पिछले हफ्ते के आपके सोच को एक बार परख कर देखना है. And you will quickly realize that your heart is actually a factory of sin. आप बहुत जल्द समझ जाओगे कि आपका मन तो पाप का एक फैक्ट्री है जो लगातार उन पापों को उत्पन्न करता रहता है. Incessantly keeps producing sin. And we are not able to control this constant production of sin from our hearts. और हम अपने मन से निकलने वाले इस निरंतर उत्पाद को रोक नहीं पाते. We have become slaves to sin. हम पाप के दासत्व में हैं. Our intellect, our emotions, our willpower, everything has become subservient to sin. हमारी बुद्धि, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छा शक्ति सब कुछ पाप के अधीन हो चुका है. It does not end here. लेकिन यहां पर खत्म नहीं हुआ. The bad news only gets worse. बुरी खबर और बुरा हो जाता है. At the end of our life, we will get wages from our master, sin. हमारे जीवन के अंत में क्या होगा? हमें हमारे स्वामी पाप से एक वेतन प्राप्त होगा. The Bible says the wages of sin is death. बाइबल कहता है पाप का वेतन मृत्यु है.
And death is not just the end of life on earth. और मृत्यु का मतलब सिर्फ इस पृथ्वी का जीवन का अंत नहीं, but it is the beginning of the experience of God's punishment for us in hell. लेकिन वो तो केवल शुरुआत है परमेश्वर का दंड का जो हम नरक में अनुभव करेंगे. At death we actually enter into a state of eternal torment. मृत्यु पर हम नरक में अनंत यातनाओं के एक दशा में सिर्फ प्रवेश करते हैं. Bible describes hell as a place where worms do not die and the fire is never quenched. बाइबल कहता है कि नरक एक ऐसी जगह है जहां पर कीड़े नहीं मरते और जो आग हमें जलाती है वो कभी बुझती नहीं. So we need to be saved not only from our bondage to sin but also from this coming punishment of God. तो हमें उद्धार की जरूरत है, सिर्फ हमारे दासत्व के इस अवस्था से ही नहीं लेकिन परमेश्वर के उस आने वाले दंड से भी. That is why we need this Savior who was born in Bethlehem. उसलिए हमें बेथलेहेम में जन्मे इस उद्धारकर्ता की जरूरत है. But how will this Savior save us from this situation? लेकिन ये उद्धारकर्ता हमें हमारी परिस्थिति से उद्धार कैसे दिलाएगा? Before I answer that crucial question, let us quickly look at the two other titles that the angel ascribed to this baby born in Bethlehem. उस महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर देने से पहले हम दूसरे दो पदवियों के ऊपर ध्यान देंगे जो स्वर्गदूत ने बेथलेहेम में जन्मे इस बालक को दिया. The second title the angel uses is Christ. He is Christ. दूसरा जो पदवी वो स्वर्गदूत इस बालक के लिए इस्तेमाल करता है वो है मसीह. ये मसीह है. Christ means anointed one. मसीह का मतलब है अभिषिक्त. The writer of this book says again and again that he is God's anointed. ये किताब लिखने वाला बार बार दोहराता है कि ये बालक वो परमेश्वर का अभिषिक्त है. God's anointed normally refers to the king of Israel. बाइबल के अंदर परमेश्वर का अभिषिक्त साधारण रीति से इज़राइल के राजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है. The king of Israel was never a self-appointed king or appointed by the people. He was believed to be anointed by God. इज़राइल का राजा कभी भी स्वयं नियोजित रहा नहीं है, ना ही उसको लोगों ने नियुक्त किया है, लेकिन ये माना जाता है कि उसकी नियुक्ति परमेश्वर से होता है. परमेश्वर उसे अभिषेक करता है. So this baby born in Israel was also God's anointed king. तो ये जो बालक बेथलेहेम में जन्मा है वो परमेश्वर का अभिषिक्त राजा है. That is why he was born as a descendant of King David in the town of Bethlehem. इसलिए उसका जन्म दाऊद राजा के वंशज के रूप में होता है और बेथलेहेम के नगर में. But this is no ordinary human king. लेकिन ये एक साधारण मानवीय राजा नहीं था. The next title that the angel uses for the child is Lord. अगला जो पदवी स्वर्गदूत इस बालक के लिए इस्तेमाल करता है वो है प्रभु. Till now the writer of this book has used this title exclusively for God. अभी तक इस किताब को लिखने वाला इस पदवी का इस्तेमाल लगभग हर बार परमेश्वर के लिए करता है. For example, in Luke chapter 1 and verse 68, it is written, "Blessed be the Lord God of Israel." उदाहरण के रूप में लूका के पहले अध्याय और उसके 68वें आयत में लिखा है, प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो. And now he uses the same title
for this baby born in Bethlehem. और अब वो उसी पदवी का इस्तेमाल इस बेथलेहेम में जन्मे बालक के लिए करता है. What is happening here? क्या हो रहा है यहाँ पर? The Bible teaches that there is one God. बाइबल सिखाता है कि परमेश्वर एक ही है. But it also teaches that there are three persons in one God. लेकिन बाइबल ये भी सिखाता है कि वो एक परमेश्वर के अंदर तीन व्यक्ति है. The Father, the Son and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा. All three are referred to as Lord in various places. तीनों को अलग अलग जगहों पर यह पदवी दी गई है. प्रभु. This child born in Bethlehem is actually the Son of God who existed from all eternity. ये बेथलेहेम में जन्मा बालक परमेश्वर का पुत्र है जो अनंतता से, जिसका अनंतता से अस्तित्व में है. He had no beginning actually. उसकी कोई शुरुआत नहीं है. When he is born on this earth, it seems that he is born on Christmas Day. ऐसा लगता है कि वो क्रिसमस के दिन पर वो जन्मा नहीं, उसका कोई शुरुआत नहीं, वो तो अनंत है. He is eternal Son of God, परमेश्वर का पुत्र है. God has anointed his son to be a king. परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को अभिषिक्त किया है राजा बनने के लिए. Not just over Israel, but over the whole universe. सिर्फ इज़राइल के ऊपर नहीं, बल्कि सारे संसार के ऊपर. This world is ruled by a dynasty. इस दुनिया के ऊपर एक राज एक डायनेस्टी का है, एक राजवंश का है. But this dynasty is not like the dynasties of this world. लेकिन ये राजवंश इस दुनिया के राजवंशों के समान नहीं है. Here the Father sent his anointed Son into the world to be the savior of his people. यहाँ पर पिता अपने अभिषिक्त पुत्र को इस दुनिया में इसलिए भेजता है ताकि वो अपने लोगों का उद्धार करे. To save them from sin and the consequences of sin, ताकि उनको पाप और पाप के परिणामों से बचाया जाए. And his name is Jesus. और उसका नाम यीशु है. He came as our substitute. वो हमारा प्रतिनिधि बनकर आया. He came to do what we could not do. वो ये करने आया जो हम नहीं कर सकते थे. First of all, he lived a perfectly righteous life. पहले तो उसने आकर बिल्कुल सिद्ध धार्मिक जीवन जिया. Unlike us, there was no sin found in him. हमसे भिन्न उसमें कोई पाप नहीं पाया गया. But his life was also a humble life. लेकिन उसका जीवन एक दीन जीवन भी था. The king of this universe came like a humble servant to the people of this world. इस संसार का राजा एक दीन सेवक बनकर इस दुनिया में आया. But they did not love him. This world did not love him. इस दुनिया ने उससे प्रेम नहीं किया. Sinful man hates God. पापी मनुष्य परमेश्वर से बैर रखता है. They mocked him, they spat upon him, they scourged him and they nailed him on a cross. लोगों ने उसको ठट्ठों में उड़ाया, उसके ऊपर थूका, उसको मारा और उसको कीलों से ठोककर उसको सूली पर चढ़ा दिया, उस क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया. But that was not the end of his suffering. लेकिन उसके दुख और पीड़ा का अंत नहीं था वो. On that cross, 2000 years back, 2000 साल पहले उस सूली के ऊपर जब वो टंगा हुआ था, he satisfied the wrath, the punishment of God. उस सूली पर उसने परमेश्वर के क्रोध को तृप्त किया. What happened on that cross? उस क्रूस पर उस दिन क्या हुआ था? God took our sins
and laid it on him. परमेश्वर पिता ने हमारे पापों को उसके कंधों पर डाल दिया. And then poured out his wrath upon him, और अपना क्रोध उसके ऊपर उंडेल दिया. The wrath, the punishment of God which was supposed to come on us, he gave it to Jesus. जो क्रोध, जो दंड परमेश्वर का हमारे ऊपर आना चाहिए था, उसने अपने पुत्र यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया. He became our substitute in death. मृत्यु में भी वो हमारा प्रतिनिधि बना. But this is where we realize the importance of a savior who was not just a mere human being, but also the Lord God. यहाँ पर हम एक ऐसे उद्धारकर्ता के महत्व को समझ सकते हैं जो केवल मनुष्य नहीं था, बल्कि प्रभु परमेश्वर है. We mortal beings could have never satisfied the wrath of God. नश्वर मनुष्य कभी भी परमेश्वर के क्रोध को तृप्त नहीं कर सकता था. And therefore we would have remained in hell forever. और इसलिए हम हमेशा के लिए नरक में बने रहते. But the Son of God endured the wrath of God and satisfied God. लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने परमेश्वर के क्रोध को सहा और परमेश्वर को उसने तृप्त किया. He became the perfect atonement for our sins. वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बना. This is the good news of great joy. ये है वो बड़े आनंद का सुसमाचार. When we believe this great good news of great joy, जब हम इस बड़े आनंद के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, we are actually receiving the saving work of Jesus Christ. हम यीशु मसीह के उद्धार के कार्य को प्राप्त करते हैं. While we receive it, when we receive it, God forgives our sins. जब हम इसको स्वीकार करते हैं, हम जब विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है. Because Jesus paid the penalty of our sins. क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड चुकाया. Now sin has no power over us. अब पाप का हमारे ऊपर कोई सामर्थ्य बच नहीं गया. It cannot threaten us with guilt because God has forgiven all our sins. अब वो हमें पाप के दोष से धमका नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है. We are liberated from the slavery of sin. हम पाप के दासत्व से मुक्ति पा चुके हैं. Neither can sin now scare us with death and hell. ना ही वो पाप अब हमें मृत्यु और नरक का धमकी देकर हमें डरा सकता है. Because Jesus died for our sins, there is now no wrath of God left for us to endure. क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, अब हमें सहने के लिए परमेश्वर का कोई क्रोध अथवा दंड बच नहीं गया है. Death is just an entry into God's presence. बल्कि मृत्यु तो विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश है. Where he promises to bestow on us all his blessings forever. जहां पर वो ये प्रतिज्ञा करता है कि वो अपने सारे आशीषों को हमारे ऊपर उंडेलेगा. We will be totally blessed for all eternity. हम अनंतता के लिए पूरी तरीके से आशीषित होंगे. In this way, the child born in Bethlehem on that first Christmas day became our savior. इस तरह वो बालक जो क्रिसमस के पहले क्रिसमस पर बेथलेहेम में जन्मा था, वो हमारा उद्धार करता बना. That is why the Bible says that our great God and Savior, Christ Jesus, gave himself for us
to redeem us from every lawless deed. You will find this in Titus chapter 2, 13 to 14. बाइबल कहता है हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले. The Bible also says, our Savior Christ Jesus abolished death and brought life and immortality to light. बाइबल ये भी कहता है हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु ने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को प्रकाशमान कर दिया. And on the third day of his death, उसकी मृत्यु के तीसरे दिन पर God resurrected Jesus from the dead. परमेश्वर ने यीशु को मृत्यु से जिलाया. Showing that God was satisfied with his sacrifice. इस बात को दर्शाते हुए कि परमेश्वर उसके बलिदान से तृप्त हो चुका था. And then he raised him up to heaven and seated him at his right hand to rule over the whole universe. और उसने यीशु मसीह को स्वर्ग में बिठाया उसके दाहिने ओर, और आज वो इस संसार के ऊपर राज करता है. God showed that he is his Christ, his anointed one. परमेश्वर ने ये बात दर्शा दिया कि वो उसका मसीह, उसका अभिषिक्त राजा है. And from heaven he rules for the good of his people and for their salvation. और उस स्वर्ग से वो राज्य करता है हमारी भलाई के लिए और हमारे उद्धार के लिए. The child which was wrapped in cloths and lying in a manger on that Christmas day, because his parents found no space in the guest room there. वो बालक जो कपड़ों में लिपटा हुआ था और जो पहले क्रिसमस पर वो उस चरनी में पड़ा हुआ था क्योंकि उसके माता पिता को अतिथि कक्ष में कोई जगह नहीं मिली थी. Today he is ruling from heaven and continues to save his people. वो आज स्वर्ग से राज्य करता है और आज भी अपने लोगों का उद्धार करता है. He works in their hearts. वो उनके हृदयों में कार्य करता है. And when they repent from their sins and trust in him, God forgives their sins. और जब उसके लोग पापों से मन को फिराते हैं और उसके ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करता है. That is why the Bible says, he is the one whom God exalted to his right hand as a prince and a savior to grant repentance and forgiveness of sins. उसीलिए बाइबल कहता है उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर ऊंचा कर दिया ताकि वह मन फिराव की शक्ति और पापों के क्षमा को प्रदान करे. I'll end this sermon with one more short and yet a very important point. मैं इस प्रचार को एक महत्वपूर्ण लेकिन संक्षिप्त बात को आपके सामने रखकर खत्म करूंगा. When the angel was giving this message to the shepherds in verse 13 to 14 of our passage, this is what is written. जब स्वर्गदूत उन गडरियों को संदेश दे रहे थे, देखिए हमारे खंड में 13वें और 14वें आयत में क्या लिखा है. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom he is pleased. तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो. Knowing what had happened in Bethlehem that day, an army of angels appear and begin to praise God. ये जानकर कि उस दिन बेथलेहम में क्या हुआ था, स्वर्गदूतों का एक दल या सेना दिखाई दिया और उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करना शुरू किया. They say glory to God in the highest. वो कहते हैं आकाश में परमेश्वर की महिमा हो. In the highest means in heaven. आकाश में मतलब है यहाँ पर स्वर्ग. They are saying that every creature in heaven is
is glorifying God today. वो कह रहे थे कि आज स्वर्ग में हर एक सृष्टि उसकी महिमा करता है, उसकी स्तुति करता है. And it is quite evident from the praise of this army of angels. और ये बिल्कुल व्यक्त हो जाता है इन स्वर्गदूतों के स्तुति को देखकर. They are glorifying God because He has sent His anointed Son to be the Savior of the world. वो इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करते हैं कि उसने अपने अभिषिक्त पुत्र को इस दुनिया में भेजा हमारा उद्धारकर्ता बनने के लिए. The angel also says, and on earth peace among men with whom He is pleased. और स्वर्गदूत ये भी कहते हैं पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो. Sinful people of this earth were at enmity with God. इस पृथ्वी के पापमय लोग परमेश्वर के बैरी थे. They were not at peace with God. परमेश्वर के साथ के रिश्ते में कोई शांति नहीं थी. That is why our conscience always blames us for our sins. इसीलिए हमारा विवेक, हमारी अंतरात्मा लगातार हम पर दोष लगाता है. But now through faith in His Son we are reconciled back to God. लेकिन अब यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो चुका है. They can experience forgiveness of sins. वो पापों के क्षमा को अनुभव कर सकते हैं. In other words, they can experience peace with God. वो परमेश्वर के साथ शांति का अनुभव कर सकते हैं. That is why the angels say that there is peace among men of the earth. इसलिए स्वर्गदूत कहते हैं पृथ्वी पर मनुष्यों में शांति हो. But this has not been the work of sinful men. लेकिन ये कार्य पापी मनुष्य का नहीं था. It is the work of God from beginning to end. ये तो परमेश्वर का कार्य है शुरुआत से अंत तक. He planned it. He sent His Son to die for our sins. उसने योजना बनाई, उसने अपने पुत्र को भेजा हमारे पापों के लिए. But sinful humanity cannot even respond in faith towards this good news of great joy. लेकिन पापी मनुष्य तो इस आनंद के सुसमाचार के प्रति विश्वास भी रखने के लिए काबिल नहीं है. For they are spiritually dead, क्योंकि वो तो आत्मिक रीति से मरे हुए हैं. But God gives spiritual life to His chosen people. लेकिन परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को आत्मिक जीवन देता है. So that they are able to respond with faith, ताकि वो इस सुसमाचार के ऊपर विश्वास कर सके. That is why the angels say, and on earth peace among men with whom He is pleased. इसलिए स्वर्गदूत कहते हैं पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो. This great salvation from the beginning to end is the enterprise of God. ये महान उद्धार शुरुआत से अंत तक परमेश्वर का कार्य है, मनुष्यों का नहीं. From the ancient of days, people have devised their own ways to attain salvation from sin and death. प्राचीन काल से मनुष्य ने अपना अपना रास्ता ढूंढा है पाप और मृत्यु से उद्धार पाने के लिए. But we must realize that sinful, mortal human beings can never liberate themselves from their own sinful nature or save themselves from the coming wrath of God. लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है कि पापी और नश्वर मनुष्य कभी भी अपने पाप को अपने आप को पापमय चरित्र से छुड़ा नहीं सकता है, ना ही वो अपने आप को परमेश्वर के क्रोध से बचा सकता है. It is only the Son of God who can satisfy the wrath of God and give us liberation from sin and eternal life in heaven. सिर्फ परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के क्रोध को तृप्त करता है और हमें पाप से छुड़ाता है और स्वर्ग में हमें नया जीवन देता है. That is why I say that Santa Claus is a big distraction. इसलिए मैं कहता हूँ Santa Claus तो हमें क्रिसमस के संदेश से दूर ले जाता है. He takes us far away from the message of Christmas. Why? क्यों मैं ऐसा कहता हूँ? Santa Claus says, I give good gifts to good boys and good girls. Santa Claus कहता है मैं अच्छे लड़कों और अच्छे लड़कियों को
अच्छे तोहफे देता हूं. But Jesus came to give good gifts those who did not deserve it. लेकिन यीशु मसीह ऐसे लोगों को तोहफे देने आया जो उसके योग्य नहीं थे. To sinful men and women like us, हमारे जैसे पापी पुरुष और स्त्रियों को. And this was God's plan. और ये परमेश्वर की योजना थी. So let us pray to Him for faith in this good news of great joy. तो आए हम उससे प्रार्थना करें कि वो हमें इस सुसमाचार पर विश्वास करने का सामर्थ्य दे. And then glorify Him for the rest of our lives. और बाकी का जीवन हम उसकी महिमा के लिए लगाएं. For He alone is worthy of it. क्योंकि वो वही इस प्रशंसा और महिमा के योग्य है.